And just a day is left for the mega battle to start. Elections are happening tomorrow, where the entire nation will be waiting. The Delhi election is just around the corner, just one day left, where the big battle is going to take place. And we are at, the New Delhi Vidhan Sabha, where the former Chief Minister himself is standing as a MLA contestant. From Aam Aadmi Party, you have Arvind Kejriwal. From BJP, you have Parvesh Verma. And from Congress, you have Sandeep Dixit. This is regarded as the most VIP seat. And before I start and try to talk to more people, yes, you'll get a lot of mixed, people who will be, rather, few people will be hesitant to talk. Few people will be voicing their opinion. Few people will keep their comments reserved and they will go to the ballot. They will vote for their candidates and decide who is the face, who is going to win, be it the BJP, the Congress or Aam Aadmi Party. Let me show you the visuals first. You get to see this is a very famous Hanuman Mandir, and we are at the New Delhi Vidhan Sabha, where this is going to contest, this is going to come tomorrow for the big battle, for the big election battle that is going to take place. Here also you see there's a lot of shops here nearby. You get a lot of things here. This is the very famous Hanuman Mandir also. You get all kinds of, all kinds of sweets, all kinds of food items, and this is also very famous for your breakfast, and also the mandir also, that is very famous here. And again, when I show you the visuals also, you can get a perspective, you get an idea of the fact that this entire lane is also filled with a lot of people also who are here, who will be voting as well, who will be coming tomorrow to vote for their people and also to choose the candidates who will be winning, or who do they think can be a probable, winning candidate. We'll also be talking. Are you all voters? If you don't mind me asking, आप लोग voters हैं? आप लोग voters हैं? आप लोग कोई voters नहीं है? आप लोग कोई vote नहीं कर रहे हैं? You're still not vote. You're a voter? 17 years. You're 17. आप voter हैं? तो आपके हिसाब से election कल होने वाला है. You're going to vote. Are you a first time voter? नहीं वोट दिया है आपने. आपके हिसाब से क्या लग रहा है? क्या माहौल है? Has the CM worked? आपके हिसाब से काम किया है या नहीं हुआ है? बीजेपी आएगी हमारे हिसाब से तो. बीजेपी. अरविंद केजरीवाल का बतौर चीफ मिनिस्टर, बतौर MLA काम कैसा रहा है? अच्छा रहा है, नहीं रहा है? ठीक रहा उनका भी. अच्छा रहा उनका भी काम. हाँ, मैं आपको पूछूं 10 में से आप CM को कितना मार्क्स दोगे? 8. पर आप बोल रहे हो बीजेपी भी आ सकती है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड वीडियो बना. मैं बीजेपी को वोट दूंगा, लेकिन फिर भी. अच्छा, पर CM का काम भी सही रहा है आपके हिसाब से? और टॉप फाइट किन दो पार्टियों के बीच में होगी? इन्हीं की, झाड़ू और उसके बीजेपी के बीच में. आम आदमी पार्टी और बीजेपी की. हाँ जी. सर, आप भी सुन रहे हो, आप बताओ आपके हिसाब से कौन लग रहा है जीतने वाला है? क्या बीजेपी? अरविंद केजरीवाल का काम सही नहीं रहा है? नहीं. 10 में से कितना मार्क्स दोगे? किसको? केजरीवाल को? 10 में से 0 देंगे हम. 0 क्यों दोगे? जी, 0 देंगे. कुछ काम भी अच्छा है. आप बताओ तो मुझे क्या काम सही है उसका. आप बताओ, आप वोटर हो, आपके हिसाब से काम किया है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं किया सर. मैं आप सबसे है कि नई दिल्ली में कौन आ रहा है. सर, आप बताइए, आपके हिसाब से न्यू दिल्ली विधानसभा में अच्छा ठीक, आप बताइए आपके हिसाब से काम हुआ है? अरविंद केजरीवाल MLA रह चुके हैं, CM रह चुके हैं, काम हुआ है आपके हिसाब से या कुछ काम नहीं हुआ है? क्योंकि बहुत सारे वादे किए गए हैं, पर वो ऑन ग्राउंड अगर हम देखें वो हुआ नहीं है. अजीब केजरीवाल के जो 5 साल पहले के जो 5 साल हैं उसमें काम हुआ है, और जो दूसरा टर्न उनका जो था 5 साल का, उसमें काम नहीं हुआ है. उसमें काम इसलिए नहीं हुआ कि वो आधे उस तक जेल में थे और वो काम नहीं हो पाया. उनके मिनिस्टर सारे जेल में थे, तो इसलिए काम नहीं हो पाया. तो इसमें किसका दोष होगा? इसमें दोष उन्हीं का ही है. उन्हीं का दोष है. जो करेगा वो भरेगा. और मैं तो ये मानता हूँ, जो काम शीला दीक्षित के ज़माने में हुआ है वो आज तक किसी के ज़माने में नहीं हुआ. ये सारी मार्केट शीला दीक्षित के ज़माने की उस टाइम की है, और उन्होंने, कांग्रेस ने ही जे कॉलोनी जितनी भी हैं वो कांग्रेस ने ही बसाई हैं. कांग्रेस ने ही उसका उद्धार किया है. आज जो जितनी भी ये पूरी लगी हुई है जिन कॉलोनियों के पीछे, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, त्रिलोकपुरी, ये सारी पूरी कांग्रेस की देन है. और कांग्रेस के पास आज जो कांग्रेस है, अगर कांग्रेस को मौका मिलेगा तो कांग्रेस फिर इसमें वो. तो किन दो पार्टियों का आपके हिसाब से मुकाबला है? मुकाबला अब इस टाइम 2 पार्टियों का नहीं है, मुकाबला तीनों का है. त्रिकोण हो गया इस टाइम, क्योंकि सारे बड़े नेता वो कर रहे हैं, इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं.
और अगर हम आपकी बात सुने, आपने बोला कि कांग्रेस के टाइम में काम हुआ है और 3 पार्टियों ने फ्रीबीज का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने बोला कि हम 2100 देंगे, बीजेपी ने बोला हम 2500 देंगे और कांग्रेस ने बोला हम प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 देंगे। आपके हिसाब से ऑन ग्राउंड जिनको पावर मिलेगा, ऑन ग्राउंड कौन ये जो फ्रीबीज है ये इम्प्लीमेंट करेगा? जो फ्रीबीज भी है ना, जो फ्रीबीज है ना, वो मैं ये कहता हूँ कि वो होना नहीं चाहिए। बस इतना होना चाहिए जैसे बस फ्री, ये चीज़ें फ्री, थोड़ा सा बिजली उसका फ्री, अब ये होना चाहिए। ज़्यादा फ्री में बांटोगे तो क्या बनेगा? आपके हिसाब से फ्रीबीज होना ही नहीं चाहिए? नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा ही होना चाहिए। ज़्यादा किस किस को दोगे आप? किस किस को दोगे आप बताइए मुझे। तो आपके हिसाब से अभी हवा किसकी है? हवा किसी की नहीं है, ये मिली जुली सरकार आएगी। मिली जुली हाँ, अलायंस होएगा? अलायंस होगा। अच्छा, चलिए सर, आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे। आप भी सुन रहे थे कॉन्वर्सेशन। ये अगर वीआईपी सीट माना जाता है न्यू दिल्ली विधानसभा, क्योंकि यहाँ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, परवेश वर्मा बीजेपी से है, कांग्रेस से संदीप दीक्षित है। आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं टॉप फाइट किन 2 पार्टियों के बीच में, और आपके हिसाब से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का काम सही रहा है या नहीं रहा है? अभी तो यहाँ केंद्र में और 10 साल से सरकार है, इसलिए यहाँ के लोग अभी बीजेपी को चुनेंगे, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी में और लोकसभा में 7 के 7 सीट बीजेपी के है और म्यूनसिपल सत्ता है। लेकिन बीच में ये जो गैप था वो अभी गैप ये लोग भरने वाले हैं। आने वाले अभी 5 तारीख को कल ही जो वोट होगा पूरा बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी। अगर आपसे भी हम पूछेंगे सर, आम आदमी पार्टी बार बार ये अलेज करती है कि एलजी की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, एलजी हमें रोक रही है। अगर हम यमुना की बात करें, यमुना भी साफ नहीं हुआ है, पोल्यूशन का स्तर बढ़ता रहा है। पर आम आदमी पार्टी ने बोला है कि हरियाणा गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट ने पॉइजन या जहर रिलीज किया है यमुना में, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, क्या अभी तक 10 साल में उन्होंने जो चुनाव के पहले जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। यहाँ डाइवर्ट करने के लिए सब बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों को जो चाहिए था, उन्होंने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। अभी लोगों को कुछ अलग से बात करके सत्ता में आने के लिए करे, लेकिन अभी जनता होशियार हो गई है और इस बार केजरीवाल अभी आराम से घर पे बैठेंगे और वो अभी जो 10 साल से जो बात करने वाली थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो डाइवर्ट करने के लिए, जैसे यमुना का विषय है, एलजी का विषय है, तो ये सब अभी उनको लग रहा है कि हम ये बात करने से सत्ता में आ जाएंगे। इस बार वो सत्ता में नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। सर, आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे, आपसे भी पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। सर, आपसे पूछने का कोशिश करेंगे, वीआईपी सीट है, परवेश वर्मा, संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, फिर उन्होंने अतिशी जी को दे दिया सीएम का पद। आपके हिसाब से टॉप 2 पार्टीज जो है फाइट में कौन है, और बतौर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी का काम कैसा रहा है? फाइट में तो हमेशा जी बीजेपी रही है, हमेशा बीजेपी ऊपर ही रहेगी और जिंदगी भर रहेगी। हमारा एक छोटा सा कहना है और ये हमेशा कहना रहेगा, जो राम को लाए हैं वो ही जीतेंगे। बस हमारे लिए तो यही है, हमारे लिए ये सबसे बड़ा डर है मंदिर, और जो राम का मंदिर बना दिया उससे बड़ा क्या होगा। तो इसलिए हम कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपके हिसाब से राम मंदिर जो उन्होंने बनाया था ये एक मेन फैक्टर होने वाला है, तो आपके हिसाब से वोट जो होगे वो पार्टी को देख के होगी, कैंडिडेट को देख के होगी, या जो डेवलपमेंट है उसको देख के? आपके सामने जिन्होंने काम किया आपने देखा ही होगा, आपकी आंखों के सामने ही है सब कुछ, कोई अलग तो है नहीं है, किसी से भी पूछ। आप वोटर है, आपका एक पर्सपेक्टिव। काम तो उन्होंने ही किया, बीजेपी ने काम किया, सारा काम उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी ने। और किसने किया काम बताइए? यमुना का आपने स्तर देखा? एक बार जाके देखिए आप वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, इतना गंदा वहाँ पर। तो बीजेपी ने बोला है अगर वो जीतती है तो वो साबरमती रिवर फ्रंट जैसा है वैसा यमुना बना देगी। आपके हिसाब से वो लग रहा है कि ऑन ग्राउंड होना? बिल्कुल बनाएगी सर, बिल्कुल। एक बार मौका देके तो देखो, 10 साल से आपने उनकी सरकार आपने देख लिया, अब हमारे को भी मौका दो, हमारे बंदों को मौका दो ना, तो पता लगेगा। सर, आपसे भी पूछने का, आप भी बोलने का, तब से मैं आपसे भी पूछूंगा। आप बताइए, आपके हिसाब से काम हुआ है, केजरीवाल जी ने काम किया है या कुछ नहीं हुआ है? क्योंकि अगर हम पानी की बात करें, पानी में पोल्यूशन हमने देखा है, एयर क्वालिटी हमेशा गिरती है, हम बार बार कवर कर रहे थे। यमुना का भी एक आया था कि अमोनिया की वजह से यमुना का जो वाइट झाग भी निकल रहा था, छठ पूजा में भी लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। आपके हिसाब से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का काम हुआ है, या आपको लगता है कि एक बदलाव का कुछ है? देखिए, हम लोग जिस सीट पे अभी खड़े हैं ये नई दिल्ली सीट है। यहाँ केजरीवाल जी 3 नंबर पे हैं, 1 नंबर पे परवेश वर्मा है, दूसरे नंबर पे संदीप दीक्षित है, तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। यहाँ की जनता नकार चुकी है, इतना झूठा व्यक्ति न जन्मा है न जन्मेगा। और 10 में से अगर मैं पूछूं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एमएलए भी रह चुके हैं, उनको कितना मार्क्स देंगे? और कौन सी दो ऐसी पार्टियां हैं जिनमें अच्छा मुकाबला आपको लग रहा है होने वाला है?
देखिए अच्छे के लिए उनको देना है या बुरे के लिए देना है, क्योंकि वो अच्छे के लिए लायक ही नहीं है। उनको 0/10 कर दीजिए, क्योंकि केजरीवाल जी जो क्या किया है कि एलजी वो नहीं होता है। क्लास में हम लोग जब पढ़ते थे तो जो सबसे नकारा स्टूडेंट होता था वो कहता था टीचर हमको पूछता नहीं है, टीचर हमको मानता नहीं है। वही हाल केजरीवाल का है। काम धाम करना नहीं है, सिर्फ दूसरे कंधे पे रख के करना है कि वो तो क्या बोलते हैं, एलजी साहब काम नहीं करने देते हैं, अमित शाह जी काम नहीं करने देते, मोदी जी काम नहीं करने देते हैं। पर आम आदमी पार्टी तो ये भी बोलती है कि मैंने स्कूल बना दिया, मैंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। अच्छा, एक कमरा बनाने में 12 लाख रुपए कहाँ खर्च होते हैं, केजरीवाल जी बताएंगे क्या? शीश महल 75 करोड़ का। वही कहते नीली गाड़ी, आपको याद है ना, नीली गाड़ी जब चलती थी कहते ना घर लेंगे, ना बांग्ला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, और 75 करोड़ का शीश महल बनाते हैं। उसमें जो वो लगते हैं, डेकोरेशन लगते हैं, उसका ठेकेदार उसका बेटा होता है। मतलब ये देखिए कमाई का जरिया, मतलब सरकारी पैसा ठेकेदार बन जाता है बेटा। एक तो 75 करोड़ सरकार का था, उस 75 करोड़ से 75 करोड़ और कमाते हैं। इसलिए इस देश में इतना बेकार मुख्यमंत्री न कोई था न कोई होगा। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आम आदमी पार्टी ने बोला है हम 2100 देंगे, बीजेपी ने बोला है हम 2500 देंगे, और कांग्रेस ने भी बोला प्यारी दीदी योजना के तहत हम 2500 देंगे। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है जो ऑन ग्राउंड ये फ्रीबीज जो है ये लोगों को दे पाएगी या महिलाओं को दे पाएगी? देखिए भाजपा दे रही है, चाहे झारखंड वहाँ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, दे रही है भाजपा। और ये जो है देना ही था तो 2019 में इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया था 1000 रुपये महिलाओं को देने के लिए, आज तक तो नहीं दिए। पंजाब में क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कुछ नहीं देने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुब्बारा छोड़ने वाले लोग हैं, हवा में उड़ने वाले लोग हैं। इस बार इनकी विदाई होनी तय है और कल चुनाव हो जाएगी, वोट हो जाएगी। 8 तारीख को बोरिया बिस्तर बांध के पंजाब चला जाएगा, ये यहाँ रहने वाला भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे भी जानने का यही कोशिश करेंगे। माहौल किसका है? हु डू यू थिंक इज द विनिंग स्टैंड? 3 पार्टियों में ट्रायंगुलर फाइट है, वीआईपी सीट है। यू हैव आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एमएलए, यू हैव परवेश वर्मा एंड you have Sandeep Dixit. What do you think is the way? See, first thing, I am from Gujarat basically. I am not staying in the Delhi, right? But as per my knowledge and view to it, Delhi, there are so many issues in this city, and current government did not do anything good as per public suggestion. Also, you know, BJP has been saying that we will bring the Gujarat model to Delhi. Yeah, definitely. Also, we'll also change the entire Yamuna to Sabarmati riverfront. How do you from Once Delhi? you see the Gujarat, Sabarmati. yeah. So, what do you think is the Gujarat model and how is it going to helpful for Delhi? Definitely it is helpful to the public because government has set up so many things in Gujarat. Not only for Sabarmati. Currently they are set up the flower show and so many things, public place, garden, everything, senior citizen, pension योजना. So दिल्ली में भी अगर आती है बीजेपी सरकार तो डेफिनेटली दिल्ली की जनता को अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। सर आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे। You are together, but I will also want your opinion as well on this. What do you think? Does Delhi deserve a change, or you think the former chief minister should return, or Congress should come? What do you think? मैं कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र में जो सरकार है बीजेपी का, तो इधर भी दिल्ली में वो होना चाहिए कि जो काम जो होता है वो जल्दी से जल्दी निपट जाता है। जो केंद्र में जो होता है सरकार उसी से निपट जाता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। मैं दे रहा हूँ आपको। So you've seen a different kinds of people who are giving their voice. I'll again before I go and talk to few more people who are here. You can see a lot of people here, and I'll just tell my camera person, request my camera person Ankush to just pan around and show you this entire happening that is there, where you see a lot of people also that is there. माता जी आपसे जानने का कोशिश करेंगे। ये न्यू दिल्ली सीट है, विधानसभा वीआईपी सीट माना जाता है। आपके हिसाब से माहौल क्या है? माहौल तो देखो जी बीजेपी का है इस टाइम, और हम तो इतने सालों से बैठे, खैर हम तो कांग्रेस ही हैं, हम कांग्रेस को ही वोट देते थे पहले। अच्छा। हमने तो केजरीवाल को भी नहीं दिए वोट, क्योंकि केजरीवाल ने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं करा। अब जो है हम सोच रहे हैं कि भाई बीजेपी को देंगे, क्योंकि हमें केजरीवाल जी ने कुछ करा नहीं है, और हम सोच रहे जो कांग्रेस पार्टी है उसकी हमारे को शायद थोड़ी थोड़ी उम्मीद है जो काम नहीं कर सकते।
और जो काम किए हैं मोदी जी ने तो लगता हो सकता गरीबों की अब वो सुने। अच्छा, आपको अगर मैं पूछूं 10 में से अरविंद केजरीवाल को कितना मार्क्स देंगे आप? मैं 10 में से तो 5% ही दे सकती हूँ। 5 क्यों? वो इसलिए कि शुरू में तो इन्होंने बोला ये करेंगे वो करेंगे फलाना ढिकाना, सब कुछ फ्री तो कर दी, बस उन्होंने बस फ्री कर दी और तुम्हारा लाइट फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन महंगाई देखो कहाँ तक पहुँच गई है। महंगाई रसोई वगैरह कुछ, और सबसे बड़ी बात है महंगाई छोड़ो सब छोड़ो, जब से केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ पे सब जगह नजर आते थे वो कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे फलाना, और जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो हमने आज तक ये नहीं देखा जी फलानी जगह केजरीवाल जी आए हैं चलो दर्शन कर लो पब्लिक मिल जाएगी। पहले हाथ जोड़ते थे फिर तो दर्शन, वो ईश्वर बन गए। आम आदमी पार्टी ने ये भी बोला है कि औरतों के लिए या लड़कियों के लिए 2500 देंगे, 2100 देंगे। आम आदमी पार्टी ने बोला, बीजेपी ने बोला हम 2500 देंगे, कांग्रेस ने भी बोला हम 2500 देंगे। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी पावर में आएगी तो लगता है कि हाँ यार मिल सकता है मेरे को पैसा? देखो जी ये सब चौंचले हैं, अगर ये बातें सारी कर सकते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के जो शिवराज चौहान जी हैं उनसे ऐसा ना कोई होगा ना है ना बनेगा, वो सिर्फ कर सकते हैं। बाकी तो जो आने वाली पीढ़ी अगर करके दिखाएगी जब भी मान सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो हम तो ये चाहेंगे शिवराज चौहान जी जो है ऐसा कोई मुख्यमंत्री बने जैसे मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान जी हैं, जो आज सारी जनता छोटी अमीर गरीब छोटी बड़ी सब एक हो रही है, सिर्फ शिवराज जी को चाहते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि कोई पार्टी ऐसी आए जो शिवराज जी की जगह लें और बहन बेटी को वो उसी नज़रिए से देखें, अमीर हो गरीब हो छोटा हो या बड़ा हो, तो हम जानते बहुत इस देश का सुधार हो जाएगा और हर इंसान का एक विश्वास हो जाएगा कि हमारा साथ देने वाला गरीबों का दाता कोई हमारा है। और नहीं तो जी मैं तो अब किसी पार्टी पे विश्वास नहीं करती हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया माता जी। मैम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, ये वीआईपी सीट है, यहाँ अरविंद केजरीवाल जी है जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, परवेश वर्मा बीजेपी से और कांग्रेस से संदीप दीक्षित है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, माहौल क्या है, किसकी उम्मीदें है? कि हमें तो किसी की उम्मीद नहीं है। नहीं है, किसी की उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? 2 महीने से हमारी दुकानें हटा रखी हैं यहाँ पे, और घर में बच्चे हम लोग रेंट पे। किन्होंने हटाया है? ये एनडीएमसी वाले और पुलिस वालों ने। क्यों? 2 महीने हो गए हैं, पता नहीं कभी करते इलेक्शन के मारे कर रहे हैं, सबका पेट भर रहा है। हम लोगों की 4-5 दुकानें बस वो हटा रखी हैं इन लोगों ने, मेन लोगों की दुकान हटा रखी है, और हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं तो हम किसको वोट दें? हमारे तो कोई वैल्यू नहीं रखता। आपके हिसाब से कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं जो आपकी सहायता करे या मदद करे? कोई दुख में खड़ा ही नहीं है भाई। 2 महीने हो गए, 2 महीने से कौन बच्चों को पाल रहा है? हमारे कोई भी नहीं, हम खुद पाल रहे हैं, खुद फेस कर रहे हैं हर चीज को। आप वोटर है, आप वोट देंगे? हाँ मैं दूंगी, लेकिन मैंने 5 साल से वोट नहीं दिया, ना मैं दूं उनको। वोट तो देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सब लोग अपने लिए जीतते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता, किसी गरीब की। पर आपका वोटर के हिसाब से आप किसी को भी वोट दे दो, वो आपका मर्जी है, पर हम यही चाहते हैं कि आप जिसको भी वोट दो वो पार्टी आपके बारे में सोचे और आपके। अगर मैं देना चाहूंगी तो मैं कांग्रेस को देना चाहूंगी, इससे बेस्ट कुछ नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आएगी तो कुछ काम होगा। एक और बात हुआ है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी ने और कांग्रेस ने ये कहा है कि हम जो महिला है उनको हम 2500-2100 देंगे। आपके हिसाब से कोई ऐसी पार्टी है जो जीतने के बाद ये वादे जो किए गए हैं फ्रीबीज का ये देंगे? कोई नहीं बात इस चीज के बारे में, ये तो सब कहने की बात है जब तक वोट नहीं होते। आपके साथ ऑन ग्राउंड नहीं होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, आपसे भी बात करने का कोशिश करेंगे। आप बताइए, मैम ने तो बोल दिया कि कोई पार्टी हमारे लिए कुछ करती नहीं है और नहीं करेगी। आपके हिसाब से ऐसा कोई है पार्टी जो आपके हिसाब से आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो सॉल्यूशंस कुछ निकाल पाएगी? आपके हिसाब से कोई कुछ कर ही नहीं पाएगी? सर हम यहाँ पे ना देखो, ये यहाँ पे कम से कम नहीं तो 40-45 वेंडर हैं यहाँ पे। मेहंदी वाले हैं, कचौड़ी वाले हैं, टिक्की वाले हैं, बाकी सबकी दुकानें सर लग रही है। पर हम जो मेहंदी वालों की है ना, हम आप उधर आके देखिए, वो मेहंदी वाले हैं, वो हमारी फाइलों को ना बंद करा रखी है। कहते हैं यहाँ पे बैठ के मत लगाओ, इधर लगाओ उधर लगाओ। सर बाहर से विदेश लोग, अंग्रेज लोग आते हैं। जब शीला दीक्षित का ज़माना था तब उन्होंने बोला था यू पुट हियर, नो एनडीएमसी नो पुलिस, आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, आप यहाँ बैठ के मेहंदी लगा सकते हो। सर एक बात बताइए, बाहर के जो लोग आते हैं
हम इंडियनों को तो समझा देंगे कि भाई यहाँ मैडम कमेटी वाले हैं, एनडीएमसी वाले हैं, तो आप उधर बैठ के मेहंदी लगवा लीजिए। पर जो बाहर के अंग्रेज लोग आएंगे उनको हम इंग्लिश में कैसे समझाएंगे? अब हमारे देश की कितनी बेइज्जती हो रही है, आप ये देखिए ना कि जो बाहर के लोग आएंगे वो कहेंगे इंडिया वेरी पुअर, नो नाइस, नो सिटिंग, नो। आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? सर ये 2 महीने से हो रहा है सर ऐसा कि यहाँ बैठ के मेहंदी, पता नहीं सर क्या राजनीति चल रही है, ये राजनीति खेल रहे हैं और गरीब आदमी पीस रहा है इसमें। पर आप वोटर तो है, आप वोट तो दोगे कि आपके हिसाब से कोई ऐसी पार्टी है जो आपकी मदद ऐसे करेगी, या आपके हिसाब से कोई आपका, जैसे मैम भी बोल के गई कि यार हमारे लिए तो कोई नहीं सोच रहा है, आपका क्या माइंड? अभी तक तो सर शीला दीक्षित का जो बेटा क्या नाम है उनका, संदीप दीक्षित, वो आए थे हमारे से मिलने के लिए और वो रोने भी लग गए थे। उनके आंख में सर आंसू आ गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक गरीब आदमी को कैसे पीस सकते हैं लोग। उनके आंख में सर मैं पहली बार कोई ऐसा नेता देखी हूँ जो शीला दीक्षित का बेटा रोने लग गया कि ये गरीब आदमी को क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं भी सर उनके साथ मैं भी रोने लग गई थी। वही आए हमसे मिलने के लिए, अभी तक ना तो केजरीवाल साहब आए हैं, ना आतिशी आई है, ना परवेश वर्मा आए हैं। परवेश वर्मा कह रहे हैं अभी मेरे पे ताकत नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और आप वो उन्हीं की मदद करेंगे ना सर जो नई दिल्ली के वोटर हैं, हम तो लक्ष्मी नगर के वोटर हैं तो हम तो लक्ष्मी नगर में देंगे ना, पर रहते तो दिल्ली में ही है ना। सीपी में हमें 40-45 साल हो गए काम करते हुए सर, अब कहाँ जाएं आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। सो यस व्यूअर्स, you got a perspective, you got a litmus test of what the people of Delhi are thinking about this elections that is going to happen. So tomorrow is, yes, definitely it's going to be a big day. We've spoken to around 15 to 20 people. We got the perspective. But again, yes, this is not the final answer. This is not the final verdict because it's going to be more intense tomorrow. You know, what is in people's mind, we do not know. We can't assess. We can talk to the people. We can get a perspective, or rather a small perspective. But what happens tomorrow becomes a big issue. Whether the Delhi the Delhi people, the Delhiites, want the a new chief minister, or are they wanting their old CM to be back, or who are they voting? Be it the Aam Aadmi Party, be it the Congress or BJP, we do not know that. Tomorrow is going to be that final day, the D-Day, because the campaigning has been done. It's over by all the parties. But now tomorrow is going to be a big day where all the Delhiites is going to come together to choose their candidate who is going to represent them in this, MLA and being the CM. But yes, it's going to be a big fight. So let's see who wins, who takes, the CM position. But yes, this is me, Brian Andy Thomas, signing off with camera person Ankush for NewsX, Delhi. और कांग्रेस पार्टी 55 साल तक रही, उसने भी कुछ काम किया। केजरीवाल भी 10 साल रहे और बीजेपी पार्टी का चांस ज़्यादा बन रहा है आपकी बार। अब वो क्या करती है, कितना काम करके दिखाती है। केजरीवाल ने स्कूल वगैरह बनवाए, हॉस्पिटल की व्यवस्था करी, और बाकी ये नई जो पार्टी आती है, मान लो कांग्रेस आती है या कोई भी पार्टी आती है, तो कितना काम करती है उसका 5 साल के बाद मालूम लग पाएगा हमको। 5 साल क्या करती है, क्या नहीं करती है। पर आपके हिसाब से कौन लग रहा है ये, अगर ये विधानसभा की बात करें, अगर हम केजरीवाल की बात करें या परवेश वर्मा की बात करें, संदीप दीक्षित की बात, आपके हिसाब से क्या हवा है? संदीप दीक्षित का ज़्यादा लग रहा है, संदीप दीक्षित का या जनता पार्टी का ज़्यादा। एक बात बताओ, आपका वीडियो जो वायरल हो रहा है फेसबुक पे, आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर केजरीवाल के साथ? वीडियो आपका है केजरीवाल जी के साथ, वो वायरल हो रहा है। चलिए आप बता नहीं चाहते, नहीं आपसे पूछेंगे यार, आपने हमसे इतने ये बात की, क्या लग रहा है, हवा क्या है, कौन? हवा ऐसा है सर, देखिए नई दिल्ली सीट जो है ना, नई दिल्ली सीट मुख्यमंत्री का सीट है और बहुत क्रांतिकारी सीट भी है। अभी जो है त्रिकोणीय टक्कर चल रही है जिसमें केजरीवाल जी कहीं भी नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। पूर्व सीएम है ही नहीं। हाँ, पूर्व है तो तीनों पूर्व सीएम ही, लेकिन पूर्व सीएम का कोई यहाँ, क्योंकि हम यहाँ पे 35 साल से सीपी में रह रहे हैं। कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर परिसर है, मेरा चाय की दुकान है और मुझे लोग नेताजी चाय वाले के नाम से जानते हैं। और वो जो कहते हैं ना कि हमको केंद्र काम नहीं करने दे रही है, एक बात बताइए, आपको शीश महल बनाने की इजाज़त दे सकती है और जनता का काम करने के लिए केंद्र इजाज़त नहीं दे सकती है। आप आश्वासन दे रहे हैं कि हम 2100 रुपये आपका वोट को देंगे, जनता को देंगे,
अनुदान देंगे, क्या आपने पंजाब में दिया? क्या आप अपने विधानसभा में एक पत्थर भी लगाया? क्या आप अन्ना हजारे का सहयोग किया? आप एक बात समझ लीजिए, जो आदमी अपने बाप को उम्र का लोगों को धोखा दे सकता है वो कभी भी किसी को धोखा दे सकता है। अन्ना हजारे का पूरा फंड खा गया वो। अन्ना हजारे बेचारे बूढ़ा आदमी जब अपने बाप जैसे उम्र का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? आप हालात जमुना मैया का देखिए, हालात डीटीसी बस वालों को देखिए, हालात बिजली का देखिए, हालात पानी का देखिए, हालात उसके विधानसभा का देखिए। हम पूरे दिल्ली की बात नहीं करेंगे और हम हालात उसकी विधानसभा सीट का भी देखिए कि उसकी हालात क्या है, तीसरे नंबर पे चल रहा है वो। और हम यही कहेंगे कि दिल्ली वाले ने उसकी टोपी तो पहन ली है केजरीवाल का, लेकिन इस बार दिल्ली वाला केजरीवाल को टोपी पहनाएगा, ऐसा टोपी पहनाएगा कि कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि हर पल पे देखिए जनता के साथ धोखा एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, बार नहीं चलेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.